ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ لوہر دیر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او لوہر دیر تیمور خان کے احکامات پر ڈی ایس پی ٹریفک خان نذر خان کی قیادت میں ٹریفک پولیس انچارج زاہد حسین کی نگرانی میں ٹریفک پولیس کی خصوصی ٹیموں نے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کیا۔ کارروائی کے دوران لاؤڈ سیلنسرز، موٹر سائیکل، ون ویلنگ، غیر ممنوعہ نمبر پلیٹس، کالے شیشے، فلیش لائٹس اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے گئے۔ ڈی پی او لوہر دیر نے ہدایت کی ہے کہ یہ مہم بلا تعطیل اور مزید تیز کی جائے گی تاکہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایس ایچ او تھانہ منگلہ کینٹ کی اہم کارروائی، غیر قانونی طور پر پتنگیں قبضے میں رکھنے والے ملزم گرفتار، بھاری مقدار میں پتنگیں اور خونی ڈوریں برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دینا تھانہ منگلہ کینٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ ملزم نے پتنگیں اپنے پاس رکھ کر ارتکاب جرم کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ منگلہ کینٹ میں مقدمہ درج۔ ملزم نے 200 عدد پتنگیں اور 10 عدد خونی ڈوریں برآمد کر لی گئی۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے کہ پتنگ فروشی، پتنگ بازی کرنے اور شہریوں کو نقصان پہنچانے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ خوشاب کے علاقے میں شدید کورے نے کسانوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ گھٹا سگرال، گھٹا مسرال اور کوٹلی راجگان میں پڑنے والے شدید کورے کے باعث ٹماٹر کی فصل بری طرح متاثر ہو گئی، جس سے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ متاثرہ کسان حکومت سے فوری امداد کے منتظر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق خوشاب کے نوائی علاقے گھٹا سگرال اور گھٹا مسرال اور کوٹلی راجگان میں رات کے وقت پڑنے والے شدید کورے نے ٹماٹر کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا۔ کورے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ کھڑی فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ کئی کسانوں کے مطابق کہ تقریباً 65% ٹماٹر کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جبکہ باقی فصل بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فصل کی تباہی کے باعث کسانوں کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ فصل پر آنے والے اخراجات کی وصولی بھی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹماٹر ان کی آمدن کا بنیادی ذریعہ ہے اور اس کے نقصان سے ان کے گھریلو حالات شدید متاثر ہوں گے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نقصانات کا سروے کر کے مالی امداد اور ریلیف فراہم کیا جائے۔ اہل علاقہ کا بھی کہنا ہے کہ قدرتی آفات سے متاثرہ کسانوں کو بروقت مدد نہ کی گئی تو آئندہ فصل کی کاشت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ مرکزی چیئرمین پی جے اے نے مرکزی دفتر کے افتتاحی تقریب کا شیڈول جاری کر دیا۔ مزید رپورٹ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، السلام علیکم۔ جیسا کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن مثبت صحافت کی فضا کو برقرار رکھنے اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انٹرنیشنل سطح پر کام کر رہی ہے، الحمدللہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے آلموسٹ تمام اضلاع میں فعال ہے اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جن اضلاع میں یا تحصیلز میں پی جے فعال نہیں، اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ ساہیوال میاں یوسف عابد صاحب اور صدر چیچا وطنی پی جے اے عارف محمود صاحب کی ایڈوائز پر چیچا وطنی پی جے آفس کا افتتاح انشاءاللہ تعالی 31 جنوری بروز ہفتہ کو ہو رہا ہے۔ اس افتتاحی تقریب میں پاکستان کے دیگر اضلاع کے عہدیداران اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی مرکزی قیادت شرکت کرے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پی جے اے چیچا وطنی آفس کے قیام سے چیچا وطنی کے صحافیوں کے مسائل پی جے کے پلیٹ فارم سے حل ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پی جے اے پائندہ باد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ چونیا میونسپل کمیٹی ہال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے امام مسجد حضرات میں 25,000 روپے کی امدادی چیکس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ایم پی اے چودھری احسن رضا خان، اسسٹنٹ کمشنر چونیا غلام مصطفیٰ، ڈی ایس پی چونیا صدر بار چونیا مشتاق احمد خان، سابقہ چیئرمین میاں نسیم ایڈوکیٹ اور بانی مرکزی پریس کلب چونیا محمد اشرف مولا نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر امام صاحبان کو چیکس فراہم کرتے ہوئے ایم پی اے چودھری احسن رضا خان، اسسٹنٹ کمشنر چونیا غلام مصطفیٰ جٹ نے گفتگو میں کہا کہ حکومت پنجاب دینی خدمات سر انجام دینے والے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ علماء کرام کا رتبہ ہمارے اسلام میں بہت اعلیٰ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پاکستان کے نظریے کو قائم رکھا ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے عوامی خدمات کا مشن ایسے ہی جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے نمائندے علی اصغر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے علاقہ چک کوڑیانہ جنوبی جہاں میں پٹواری کی ملی بھگت سے سرکاری زمین سے ریت اور مٹی کی چوری نہ رک سکی۔ تفصیلات کے مطابق جنگ ٹریکٹر ٹرالی کی مدد سے سالوں سے سرکاری زمین ریت اور مٹی چوری
उठाई जा रही है, जिनको कोई रोकने वाला नहीं। हुकूमत पंजाब की करोड़ों की जमीन को बंजर बनाया जा रहा है और इंतजामिया खामोश दिखाई दे रही है। इलाके की आवाम का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से और डिप्टी कमिश्नर जंग और असिस्टेंट कमिश्नर फरह महमूद से इल्तमास है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि हुकूमत के कब्जे को नुकसान न पहुंचाया जा सके। गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा 130 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। आटा चक्की के महाना कोटा में कमी। महकमा खुराक के ज़िले अफसरान ने बदनीति की बुनियाद पर गंदम के हज़ारों बैग दीगर अजला में फरोख्त कर दिए। अवामी हलकों की जानिब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक कनीरी तालका में गंदम का जारी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस आटा की किलो में भी खुशरुबा इजाफा हो चुका है। कनीरी तालका से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक गंदम की बहरान और आटा चक्कियों के मुकर्रर करदा गंदम के महाना कोटा में कमी की वजह से आटा 130 रुपए फी किलो जबकि 5,200 रुपए 40 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और ओपन मार्केट में गंदम की निर्खों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। मार्केट में गंदम 4,600 रुपए 40 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है। सूरत हाल के बावजूद महकमा खुराक की जानिब से आटा चक्कियों की मुकर्रर करदा माहाना कोटा कमी करके गंदम के 40 बैग फी स्पून मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो कि पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इंतहाई कम है, जिसके बायस आटा की किल्लत और नरखों में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक के अफसर ने बदनीति के तहत उमरकोट ज़िले के मुख्तलिफ सरकारी गोदामों से गंदम के 24,000 बैग निकाल कर ज़िले डेर के मन पसंद ताजिर को फरोख्त कर दिए हैं, जिसके बायस उमरकोट ज़िले में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी हलकों ने बिला हुकाम से नोटिस लेने का और आटा की नरहों में कमी लाने का मुतालबा किया है। जैकबाबाद से हम शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद की तहसील ठाल में थाना आरडी 52 में कोसा बरादरी की खवातीन को नाजायज कैद में रखना और आसिया कोसा को थाने के अंदर एसएचओ मकसूद अहमद सजरानी और बड़े मुंशी यासीन नोनारी और 7 पुलिस एहलकारों ने मिलकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े के खिलाफ जैकबाबाद में सोशल मीडिया टीम की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत माविया बंगलानी के मुजाहरे में वकार, तैमूर शेख, जवाद भट्टो समेत दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलविस थाना आरडी 52 के पुलिस एहलकारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मीना ज्यादती का शिकार होने वाली आसिया कोसो को इंसाफ फराहम किया जाए। तहसील टेक्सा अहाता बाजार में दुकानदार सरकारी नरहों पर आटा मिलने से कासिर। फ्लोर मिल के मालिकान आटा ब्लैक करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं इरफान अवान की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील टेक्सला के बाजार अहाता में और यहाँ पे पूछते हैं कि दुकानदारों को सरकारी रेट पे आटा दस्तयाब है या नहीं। खान भाई, आपको यहाँ पे सरकारी दरों पे आटा दस्तयाब हो रहा है या नहीं? सरकारी रेट आपको नहीं मिल रही? नहीं, हमारे पास आटा के लाइसेंस भी है आटे का और न्यू फिर भी हमें कोई मिल वाला है। ये कैमरा लगाएंगे इसके पास। ये रिन्यू हुए और ये हमारे पास सरकारी लाइसेंस है। आपके पास आपको कितना कोटा दिया जाता है वैसे सरकारी इस लाइसेंस पे कितना कोटा है? इसमें हमारा 100 थैला रोज 100 थैला डेली का है। हमें मिलता है 1 थैला भी नहीं। अभी 1 थैला भी नहीं मिला? 1 थैला भी नहीं। तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए हमें कोई आटा नहीं मिला। तो मिल वाले क्या कहते हैं? मिल वाले कहते हैं हमें गंदम नहीं मिल रही, सारे मेरी भगत के साथ सारा काम हो जाता है। और यहाँ से हमने अक्सर देखा है यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं आटे की, वो तो सरकारी रेट का जो आटा होता है, सरकारी नाप का जो आटा होता है वो यहाँ से सप्लाई होता है, तो उनको क्या कोई लाइसेंस वगैरह मिले हुए हैं? नहीं, लाइसेंस नहीं है। ये मिल वालों की मिली भुगत है, वो करके गाड़ियाँ पार लगा देते हैं। अभी आपके पास यहाँ पे कोई आटा मौजूद नहीं है? कोई मिल वाले देते ही नहीं किसी को। सरकारी तो कहते हैं कि 1810 गालपन या 1820 रुपये का पहला जो है 1810 का है पर देते नहीं है। अच्छा, देते मेरा गेट भी नहीं खोलती। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अच्छा हमें बड़ा सीखिए करना तो भाई ये हमारा कोई मसला हल किया जाए, हमें कुछ ना कुछ आटा दिया जाए ताकि हमें तो बहुत गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनको घर का सिस्टम कर सके। उनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, आटा ना मिल रहा है। बाजार में किसी दुकान पे भी आटा नहीं आ रहा सरकार का? ना हमें नहीं लग रहा पूरे तो ना कोई एक दुकानदार हो कि अगर आए तो आए नहीं दिया, और जिसके पास आता है वो भी देते ही नहीं। वो किस वजह से नहीं देता? वो बस वो रात को ब्लैक करते हैं। जी नाजरीन, आपने सुना है कि एक शहरी की आवाज़ पे हम यहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकारी नरखों पे जो आटा हुकूमत ने कहा हुआ है वो दुकानों पे मैसर नहीं है और ना ही मिल वाले देते हैं।
क्योंकि वो सरकारी आटा ब्लैक होकर ज़्यादा कीमत पर KPK में जा रहा है। जी तमन्ना कैसे? ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं कि यहाँ पे आटा सरकारी नाकों में मिल रहा है कि नहीं? नहीं वजह दुकान पे नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप फूल वाली बता सकते हैं। बता सकते हैं? तो आपके पास छोटा ये लाइसेंस तो होगा, लाइसेंस भी है, और हम जिस कंपनी के साथ काम करते थे वो उसके साथ कुछ अपने काम नहीं कर रहे, बाहर से हम ऑटो उठा लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से जो गाड़ियाँ नाके लगे हुए हैं फूड वाले हैं, तो यहाँ से गाड़ियाँ मंथली वीकली डेली की बेस पे यहाँ पे गाड़ियाँ ब्लैक होकर आटा KPK में जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को हम यही कहना चाहते हैं कि वो तो अपनी तरफ से ना नाका तो लगाया हुआ है, लेकिन नाके पे जो है ना कोई उसकी पहरेदारी सही तरीके से नहीं हो रही है, जिस वजह से आगे जा रहा है। तो पीछे से ही आटा आता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपके पास जो ग्राहक आते हैं उनको आटे की कमी कैसे होती है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमारे पास तो सरकारी आटा आता ही नहीं है ना, प्राइवेट आता है। प्राइवेट 15 किलो वाला, 15 किलो की क्या कीमत है? 15 किलो की 21 रुपये। यहाँ पर आपके पास 2050 में 2050 का सरकार आपको आटा नहीं देगी। सरकार मतलब है कि मिलों को दे रही है ना, मिले नहीं दे रही। आगे से मिले नहीं दे रही। उनको कोटा मिलेगा तो उन्हें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत जिला चनियोट में भी स्कूल मील प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जदीद एक मोहल्ला गड़िया में प्राइमरी तलबा और तलबात में दूध के पैकेट तकसीम करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने मील प्रोग्राम के तलबा की इनरोलमेंट की और बच्चों को पीने के लिए मिल्क पैक दिए गए। CEO एजुकेशन अजहर सोहेल न्याजी, DPO एलिमेंट्री मोहम्मद इस्माइल, DPOs, AEOs, हाई टीचर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज से तलबा में ग़िज़ाई कमी के असरात में वाज़ेह कमी आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के स्कूल मील प्रोग्राम में शफाफियत, मुसाबकती ट्रेंडिंग से बहस यकीनी बनेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दूर दराज अजला में स्कूल मील प्रोग्राम के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की है। मील प्रोग्राम में तलबा और तलबात को हफ्ते में 3 दिन दूध और 1 दिन बिस्किट के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के तहत शहदा के अहले खाना के फलाह बहबूद का सिलसिला जारी। DPO राशिद हिदायत ने शहदा के बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए। शहीद रियाज अहमद की साहबजादी आमना रियाज को MPhil फिजिक्स रिसर्च के लिए लैपटॉप दिया गया। अशरफ ताहिर शहीद और मोहम्मद हुसैन शहीद के बच्चों में भी जदीद लैपटॉप तकसीम किए गए। शहदा के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुलिस की तालीमी माउनत जारी रहेगी। मैक्लोडगंज में आवारा कुत्तों की भरमार, शहर में कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ने लगे। 12 साला अली रजा नामी बच्चे को बावले कुत्ते ने काट कर जख्मी कर दिया, जिससे बच्चे की टांग पर शदीद जख्म है। बच्चे को जख्मी हालत में इब्तिदाई तिबी इमदाद के लिए RIC मैक्लोडगंज मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने का मुतालबा है। कराची मलीर के इलाके कोई गोठ में सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद खानदानों के लिए सर्दियों के खुसूसी रिलीफ पैकेज की तकसीम का अहतमाम किया, जिसके तहत बच्चों में गर्म जैकेट्स जबकि बड़ों में गर्म बिस्तरों की फराहमी अमल में लाई गई है। तफसीलात के मुताबिक फाउंडेशन की टीम ने पहले मरहले में इलाके का सर्वे करके मुस्तहिक और कम आमदनी वाले घरानों का निशानदेही की, जिसके बाद मुनज़्ज़म अंदाज में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस दौरान रज़ाकारों ने इस बात को यकीनी बनाया कि इमदाद हकीकी ज़रूरतमंदों तक बाइज़्ज़त तरीके से पहुँचे। मकामी रिहायशियों ने सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि शदीद सर्दी में ये मदद इनके लिए बहुत बड़ी सहूलत साबित होगी। उन्होंने फाउंडेशन की समाजी खिदमात को इलाके के लिए काबिल तक़लीद करार देते हुए कहा, फाउंडेशन के मुंतज़मीन का कहना था कि मौसम सरमा में बेसहारा और कमज़ोर तबकात की मदद इनकी अव्वलीन तरजीह है और आइंदा भी मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी नौइयत की फलाही सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। तकसीम के बाद मुस्तहिक खानदानों ने गर्म मलबूसात और बिस्तरों की फरहमी पर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। और रहीम खान प्रेस क्लब तरंडा सोहाय खान के 9 मंथ की दौरान के हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक रहीम खान तकरीब में मेहमान खुसूसी MPA चौधरी नईम शफीक थे, जिन्होंने मिम्बरान से हल्फ लिया और सहाफत के मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार को सराहते हुए सहाफ़ियों को माशरे का मजबूत सतून करार दिया।
तकरीब में बानी प्रेस क्लब चौधरी अलियास वड़ाइच, सरपरस्त आला चौधरी सरदार जाम रबनवाज और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने अवामी मिसाल के हल और हक और सच के लिए आवाज बुलंद करने के अज़म का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और प्रेस क्लब की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।